ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی فریڈم نیوز پر ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ 22ویں روزے کی آج ٹرانسمیشن ہم لے کر آئے ہیں اور 22واں روزہ یقیناً اس وقت تیاری ہوتی ہے 23ویں شب کی، تو اس پر تو ہم مزید بات کریں گے ہی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہماری اس نشریات کو سجانے کے لیے ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیت ہمارے روحانی اسکالر حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آج پھر سے جلوہ گر ہیں۔ اپنی خوبصورت باتوں سے، اپنے میٹھے دل نشین انداز سے ہمارے اس پروگرام میں جلوہ گر ہیں، چار چاند لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے، چار چاند ہی جمع کیے ہیں آپ نے، اور ابھی بات کرتے ہیں اس کو چار چاند۔ بالکل جناب، چار چاند کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور آج حافظ صاحب ہم نے آج اپنے پروگرام میں جو ہے وہ جیسے کہ آغاز میں 23ویں شب کا ذکر ہوا کہ ہر طاق رات ہی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور جیسے کہا گیا ہے کہ تلاش کرنا ہے، تو وہ تلاش جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اب میں پچھلے کسی پروگرام میں صدر رمضان کا جو پروگرام تھا اس میں کہہ چکا تھا کہ فریڈم ٹی وی تلاش یعنی ریسرچ کے کام کو لے کے چلا ہے، تو یہ پروگرام بھی آپ کا ریسرچ پہ آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پچھلا بھی ریسرچ ہے، یہ بھی ریسرچ ہے۔ 23ویں شب آپ نے کہا ہے، یعنی 22 رمضان کا روزہ رکھ چکے ہیں ہم، اور اب ہمارا افطار گزر گیا ہے اور اب ہم تلاش کے عمل پہ چل رہے ہیں۔ یہ سینیریو، اس سینیریو میں ایک سنگم بنتا ہے کہ جو تلاش کرنے جائے گا وہ پہلے تو شب قدر کی اہمیت کو سمجھے گا، صحیح، اور پھر یہ سمجھے گا کہ تلاش کے لیے طاق راتیں کیوں رکھی گئی، پھر یہ سمجھے گا کہ ان طاق راتوں میں سے 23ویں شب کی کیا خاص بات ہے کہ اس کو رکھا جائے۔ یہ تین باتوں کا سنگم ہے، تب کہیں جا کے وہ والی عبادت شروع کرے گا جس میں شب قدر اس کو مل جانے کے امکان۔ آئیے ہم اس تلاش کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کو پتہ ہے کہ شب قدر کی کس ڈیٹ مقررہ تاریخ بتانے آئے تھے کہ دو مسلمانوں میں ایک بحث و تنازع چل رہا تھا، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقررہ تاریخ کو ملتوی کر دیا بتانے سے، اور یہ رحمت کا پہلو رکھا کہ تم تلاش کرو، یہ رحمت کا پہلو تھا۔ بالکل ایسی ہی جیسے ایک بچہ سمجھے کہ مجھ کو کہا ہے کہ میرا پیپر ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ کو 5 سوال پکے پتہ چل جائیں جو صبح پیپر میں آنے ہیں، لیکن ایگزامنر کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اس طرح گو تھرو کر لو گے، ہاں گو تھرو کر لو گے پورے سلیبس کو، تو بس تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہ 20 سوال کر لو، اس میں سے کوئی والے 5 بھی نکل آئیں گے۔ اس طرح جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممتحن کا کردار ادا کیا امت کے لیے، کہ یہ امتحان لیا کہ اللہ کی قربت جو شب قدر میں بصورت قرآن عطا ہوئی، وہ قربت کو تلاش کرنے کے لیے تم لوگ کو ایک ہی رات کیوں چاہیے؟ کیا کسی محنت نہیں کر سکتے کہ قربت الہی جس کو اللہ نے فرمایا حتی یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے نفلوں کے ذریعے۔ یہ 23ویں شب نفلوں کی شب ہے۔ یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ہے کہ تراویح کی امامت باقاعدہ بطور امام تراویح یہ 23ویں شب سے ہی شروع کیا۔ اچھا، جی ہاں، 23ویں شب۔ پھر اگلے دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہ گئے لوگ آنگن میں، اور سرکار نہیں نمودار ہو، صحیح، اور صبح سحری کی اذان بھی ہو گئی، تب جا کے فجر میں نمودار ہوئے آقا، اور لوگوں نے کہا کہ سرکار ہمیں تو یہ وہ تھا کہ آپ نے کل وہ پڑھائی کی، قیام اللیل کرایا تھا، تو آج زیادہ لوگ ہو گئے تھے تو آپ نمودار نہیں ہوئے، تو کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ قیام اللیل فرض ہو جائے تم لوگوں پہ، اس لیے مشقت میں امت کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں نے ایک دن کا وقفہ کیا، ذوالغبن حدیث شریف تو یہاں پر یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے خواتین تو ہوتا ہے کہ ہم کبھی چھوڑ کے بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو کیا حضرات بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کہ بالکل، بیچ میں کبھی کوئی کام ہو؟ حضور نے شعبہ تراویح یہ قیام بھی اس لیے کیا تھا کہ 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب خود امامت فرمائی، بقیہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے فرمائی، اور کچھ نے گھر گھر تراویح کا اہتمام کیا، کیونکہ کووڈ ہے تو اس والی سنت کو ہی زندہ کر لیا جائے گھر گھر تراویح کا، کہ گھر کا سربراہ اس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ سنا دے، کیونکہ سورہ مزمل جو قیام اللیل پر ہے اسی تراویح پر ہے، اور وہ بالکل ابتدائی 5 وحی میں آتی ہے، اس میں فقر و ما تیسر من القرآن فقر و ما تیسر منہ، یہ 2 تاکیدیں جو آئی ہیں وہ اسی کے ہیں کہ جتنا قرآن جس کو میسر ہو سنا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہی تھا کہ سب کے سب پورے 30 پاروں کے حافظ و زبان میں نہیں تھے، کیونکہ قرآن
की जमा तदवीर नहीं हुई अच्छा, थी, तो जिसको जितना हिस्सा याद था वो उतना सुना दिया करता अच्छा, था। इसमें यहाँ एक और सवाल कि आपकी नशिस्त में ये जो है वो हमें फ़ायदा होता है कि हम सवालात कर सकते हैं आपसे। तो वो सवाल कुछ इस तरह से है कि जैसे आपने यहाँ पर फरमाया कि जो सूरतें हैं, जितना कुरान पाक याद है उतनी, क्या वो आयतें या वो सूरतें रिपीट की जा सकती हैं? तरावी में जैसे हम 20 रकत पढ़ रहे होते हैं, तो क्या वो रिपीट की जा सकती हैं? जी जी, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी हरकत की थी, तो गांव के एक लड़के ने आके उसे सल्लम से शिकायत की कि ये रिपीट बहुत करते हैं अच्छा। और हमें बक़िया कुरान सुनने को नहीं मिलता। अच्छा। तो उसे सल्लम ने उनको कहा, मास क्या ऐसी बात है कि तुम उसी को तकरार करते रहते हो, हर उसमें यही पढ़ते रहते हो हर रकत में? कहा, सरकार मुझे जिन आयतों से ज़्यादा प्यार है, मुझे दिल चाहता है कि वो तकरार हो जाए, तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि ये वो सहाबी है जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बना के भेजा था। इसका इमाम बना के भेजा था, उसका फतवा, उसका अमल हमारे लिए सनद रखता है, तो रिपीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ख़वातीन घरों पर एहतमाम कर रही होती हैं तो वो अकेले पढ़ सकती हैं कि जितनी सूरतें वगैरह याद हैं तो 20 रकत पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त सी बात। अच्छा, 20 का भी ये है कि 8 रकत औरतों के लिए। अच्छा, हाँ ठीक, वो 8 रकत पढ़ ले तो तरावी हो जाती है। सही सही। तो वो उनकी मकदार तिलावत कम होती है। तो ये जो हम जमात के साथ पढ़ने जब जाते हैं तो 20 रकत ही पढ़कर वो आते तो हैं? 20 पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ नहीं, तो ख़वातीन भी होती हैं? हाँ, वो वहाँ 8 पर? में बर्खास्त भी हो सकती हैं। ख़वातीन ये भी तो करती थी सल्लम के ज़माने में, पहले सलाम फेर के पीछे से चली जाती थी, तो बर्खास्त के भी उनके पास है, एम्पावरमेंट दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, ये एक फेस्टिविटी होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ख़वातीन की तरावी का एहतमाम होता है तो एक होता है कि आप अपने कम से कम महल्ले वालों से मुलाकात हो जाती है आपकी, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हमारी सारा साल अगर मुलाकात नहीं हो रही मसरूफियत की वजह से, तो एटलीस्ट इन दिनों में हम एक दूसरे से रोज़ मिल लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी, ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ पर उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ हैं मौजूद, और हज़रत हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। 23वीं शब के हवाले से आज बात हो, आपने 3 चीज़ों के संगम की बात की थी, तो वो आखिर क्या है, वो जंक्शन क्या है? हाँ, वो जंक्शंस जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिनेरियो जब रोज़ेदार के सामने होगा तो वो फिर उसके अंदर तक़द्दुस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि अब 23वीं शब का सिनेरियो ये बनता है कि एक तरफ जाने के आना सल्लम शोबे तरावी क़यामुल लैल को बाज़ाब्ता इमामत से शुरू कर रहे हैं, ये एक हुआ। दूसरा संगम ये हुआ कि हम 22वां रोज़ा रख कर 23वीं शब में दाखिल हो रहे हैं जी। 22वां रोज़ा खुद किस चीज़ का संगम है? शहादत मौला अली का संगम जी। हम मौला अली की शहादत का सोग लेकर बैठे हुए, और उस सोग में हमको अपने अंदर ये रोग लगा लेना चाहिए कि मुहासबे का, हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, कि ये गुजरा जा रहा है। और उस संगम में एतकाफ़ का भी एक दिन गुजर चुका है ना, 21 रमज़ान गुजर चुकी है, तो ये एतकाफ़ का संगम भी है और ये मौला अली की शहादत का भी संगम भी है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा क़यामुल लैल का शोबा खुद इमामत करके कराया। अब इन सब के संगम में सरकार ने शब क़दर का एक चौथा, वो जो बनेगा 4 चंद की बात करेंगे, तो चौथा चांद ये था कि शब क़दर भी बन गई, क्या बात कि इसमें शब क़दर तलाश करनी है। तो शब क़दर तलाश करने के लिए जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक फार्मूला दिया था, वो ये था कि देख लिया करो कि जो शब क़दर होगी उसमें कुत्ते नहीं भौंकेंगे, सही, और तुम नमकीन पानी में मीठा महसूस होना शुरू हो जाएगा, और सुबह का सूरज बगैर किरणों के निकलेगा, वो बिल्कुल ऐसा लगे ठंडा ठंडा सूरज निकलेगा, और हल्की हल्की खुनकी होगी उसमें सुबह। अच्छा, तो जब आप 23वीं शब की इबादत करके फारिग हो जाए तो ये चीज़ें जो क्लाइमेटिक सिम्टम्स बताए हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और फिर हज़रत अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया था कि इन जो 5 शब क़दर है इनकी शनाख्त का ये भी एक फार्मूला दिया था कि ये देखो कि पहली रमज़ान कब पड़ी थी। अच्छा, हाँ, ये वाला, तो पहली रमज़ान इस दिन को पड़ी थी तो शब क़दर ये 23वीं होगी। अच्छा। इस दिन को पड़ी थी तो ये होगी। अब मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ था मदीना शरीफ में सऊदी अरब में, यहाँ पहली रमज़ान कब थी? यहाँ पहली रमज़ान संडे को थी। संडे को थी ना, तो अब संडे में उन्होंने फरमाया कि 23वीं शब और 27वीं शब वो उनमें से कोई एक होगी। तलाश के अमल को और इजी कर दिया हज़रत शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये भी मशाइख़ चिश्क नफली शबीने के नाम से जो मुर्शिदा हाफ़िज़ सैरिश ने निकाली है किताब, उसमें आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी, ज़रूर हम उसे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से आपने निशानियों की बात की ना, तो यहाँ पर इस बात की भी रिसर्च की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद कोई साइंटिफिक पहलू ज़रूर निकले कि जो इस रात में इतनी रहमतें बरकतें नाजिल हो रही होती हैं और फिर ये सिम्टम्स आते हैं, तो आखिर इसकी
की भी वजह क्या है, तो ये भी सोचने की बात है। और अल्लाह ताला हम सबको इस बात को की रिसर्च करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो मेरा हज़रत आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि जैसा हम 23वीं शब की इबादत की और तलाशने की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम सहूलत पसंद लोग हैं, तो हमें कुछ ऐसी नवाफिल इबादत जो है वो बता दीजिए ताकि हम भी उन तलाश करने वालों में शामिल हो जाएं। बड़ी प्यारी बात की सहूलत पसंदी हमारे पूरे पाकिस्तानियों की आदत बन गई है और इसमें भी वो चाहते हैं कि सहूलत मिले। तो इसके लिए नवाफिल का एक पूरा लंबा वो है, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि नवाफिल की किताब में एज़न एक लफ्ज़ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं डिक्टो। वो हम नहीं, बल्कि हम पूरे उसको 2.5-3 पेजेस की नवाफिल होती हैं और उसके अंदर 17-18 किस्म की नफलें हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबके सब पढ़ लें। एज़न का मतलब ये है कि एनी वन ऑफ दिस, बिल्कुल जैसे इम्तिहान के पेपर में होता है कि दिस और दिस 15 मार्क्स सी। तो इस तरीके से हम उसमें से चुन लिया करें कि कौन सी आसान किस्म की नफलें हैं जो हमारी काहिल नफसी को कारामद होंगी। उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि कारामत में हज़रत जनाब सैयदा ने जो बताई नफिल, जो हज़रत मौला अली को वसीयत की कि ये नफिल जो पढ़ेगा मैं रोज़े हशर मुझको, क्योंकि जनाब सैयदा का एजाज़ ये भी तो है कि हमने 3 रमज़ान को उनका यौम विसाल मनाया है, तो उनका एजाज़ ये भी तो है कि जो पुल सरात होगा सबसे पहले उनकी सवारी गुजरेगी और जन्नत का दरोगा ऐलान करेगा कि रुद्दू अब्सारहुम, अपनी नज़रें नीची कर लो, क़द इबरा बिन्ते रसूलुल्लाह गुजर रही हैं। तो उन्होंने जो इस शब की नमाज दी है वो मैं आपको नमाज फ़ातिमा बता देता हूँ। वो उन्होंने 4 रकत बताई कि 4 रकत में से 2-2 करके पढ़नी है, लेकिन जो बीच में जो 2 वाली जो तैयात है उसमें सलाम नहीं फेरना है, दोबारा खड़े हो जाना है। बस ये है। अब आपको जो भी क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है वो पढ़ लीजिए 3-3 दफ़ा के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दफ़ा क़ुल हुवल्लाहु अहद एक कुरान जितना सवाब है और 4 दफ़ा क़ुल या अय्युहल काफ़िरून भी एक कुरान जितना सवाब है। तो अगर आप इन 4 रकतों के 4 कुरान वाला सवाब से वो करना चाहें तो सहूलत पसंदी भी हो गई, सवाब भी पूरा हो गया, हम फरमा हम सवाब। तो नमाज फ़ातिमा पढ़ लिया करें। इसमें कम से कम उसका ये फ़ायदा है कि आपने 4 रकत को 2-2 करके पढ़ा है, लेकिन बीच में जब वो 2 रकत हो गई तो उसका रब्बना आतिना तक पढ़ लिया, सलाम नहीं फेरा, खड़े होकर फिर दोबारा पढ़। उसके यही है। इसमें जनाब सैयदा ने फरमाया है कि मैं कदम नहीं रखूंगी जब तक इस नमाज के पढ़ने वाले की उंगली पकड़ के अंदर न ले जाऊँ। तो ये मैं आपको छोटी सी नमाज माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने और इतनी प्यारी सी आपने हमें इतने प्यारे से हमें नवाफिल बताए। और ये इसके साथ ही जो है वो ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा दिल तो नहीं होता कि जब हज़रत आएँ तो हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, और बल्कि हमारा दिल चाहता है कि हम गुफ्तगू आपके सुनते ही रहें, रोशन बयानी आपके सुनते ही रहें और आपसे सीखते रहें। और इंशाअल्लाह अब कल आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए उरूज नाज़ निज़ामी को दीजिए ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ौक़ रमज़ान, ज़ौक़ रमज़ान।